نوِ سال آز پزِ ہے اَسہِ کَرُن بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ لیکن توتہِ چھِ أسۍ شُکُر گُزار خورشیٖد صٲبٕنۍ یِمو فوری یا یِمو یہِ اخبارَس منٛز کوٚر یِمو کوٚر فوراً مطلب مِنٹَنٕے منٛز کوٚر یِمو رٲبطہٕ اور تَمہِ پَتہٕ کٔرٕکھ یِہٕے محنت ییٚتٮ۪ن یِم معزز حضرات ییٚتہِ چھِ یِمَن سۭتۍ کوٚرُکھ رٲبطہٕ تہٕ مٔلِک صٲبَن یہِ سَجَشَن دِژ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ یُن غور کَرنہٕ اور اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ یُن عمل کَرنہٕ شکریہ شہری بنتے تھے اب کیا بتاؤں آپ لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں ہماری نا قدر دانی ونب نظرن زمانس روزتن نا قدر دانی ونب نظرن زمانس روزتن چون فن بمراوی سازس لول اسمانس اندر چھُکھ سُہ پیغمبر فنُک معجزہ مِزراب چون چھُکھ سُہ پیغمبر فنُک معجزہ مِزراب چون چٲنۍ لَے کٕت کٕت کرن پٔرین پٔرِستانس اندر درد سوزُک ساز رسان لوٚب اتھن چانٮ۪ن اندر رٲہین تام پوشہٕ گوٚن سوزُے ژٕ نظرانس اندر حق ادٲیی ہیٚچ نہٕ منشوٗرن کٔرِتھ لفظن اندر حق ادٲیی ہیٚچ نہٕ منشوٗرن کٔرِتھ لفظن اندر شوٗبہِ ہی خوٗنے جگر میونُے ژٕ نظرانس اندر شُکریہ بہت رحم اللہ تھوڑا سا چلو چائے باد کر بعض اوس کٲشُر شاعر تہٕ بہتر چھُ کہِ بہٕ وَنہٕ کٲشرِس منٛز دَپان ایک شعر یاد آتا ہے کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے بہت کو ایک اور خیال کہ یہ جان باز کی نظر کی تاروں سے جو دھن نکلی وہ تو سب نے سنی جو ساز پہ گزری وہ کس نے سنی ارے واہ وہ کس نے سنی اس سے پہلے کہ میں ایک کم فہم اور کم ظرف شخص اس کی زندگی پہ یا سوانح عمر پہ روشنی ڈالوں ایک اہم بات یہ ہے کہ میں خورشید صاحب کو اس بات کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ ابھی ایک شخص ہماری اس سوسائٹی میں ایسا ہے جس کے ذہن میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آؤ مل بیٹھیں ان کھوئے ہوئے یادوں کو پھر سے بلائیں ان بکھری یادوں کو پھر سے سمیٹیں ایک دوسرے کے غم کو پھر سے بانٹیں اور یہ جتنے بھی لمحات ہمارے پاس ہیں ان کو بڑی خوش اندامی سے گزار لیں ان کو مبارک ہے اور صد مبارک ہے کیونکہ ایسے اس قسم کا سوچنا فرصت کیا ہے کس کو ٹائم ہے کس کے پاس جو گئے گزرے موسیقار ہوں یا سخنور ہوں شاعر ہوں یا مقرر ہوں علماء ہوں یا پرہیزگار ہوں ان کو یاد کریں چلو اتنا ہے کہ انہوں نے ٹیلی فون کے لیے اور پھر بذات نفس نفیس خود ان سے ملے میرے گھر میں آئے رحمت اللہ علیہ مشیت پٲٹھۍ کَرُن مےٚ دوٚپُس گۄڈَے دوٚپُن ژےٚ چھُ کانٛہہ واقعہٕ مےٚ اوس اَکھ دوست سُہ اوس مدن میں نے سُہ اوس مدن تپاس اب جان باز صاحب کا ایک واقعہ بتاؤں گا وہ نہ صرف وہ موسیقار گلوکار شاعر سخنور تنقید نگار زیرک مزاج عاشق رند یہ تو تھے ہی اس میں اوصاف لیکن یہ سب سے بڑا خوددار آدمی تھا
जिस वक्त जानबाज कश्तवाड़ी मरहूम सस्पेंड हो गए तो उन्होंने यहाँ होटल खोला, आलमगीर होटल। आलमगीर होटल जब खोला तो उसमें उनका मेहमान आया, कासिम साहब का भाई, जो स्पीकर हुआ करता था असेंबली में, गुलाम अहमद की क्या नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि एक बार कश्मीर में महफिल हो रही है, वहाँ बहुत सारे गुन्ना साहब मरहूम थे, उसमें थे, महफिल हो रही है तो डॉक्टर अली जान भी महफिल में बैठे हैं। तो डोरवाल साहब गा रहे हैं तो अब अली जान, चूँकि डॉक्टर अली जान साहब जो बहुत मसरूफ़ इंसान थे, आदमी थे, उन्होंने वो खड़े हो गए, घंटा सारा बैठे, महफिल चल रही है, तो उन्होंने डोरवाल साहब से रुखसत मांगी, ऐसे जेब में डाला तो कितना था क्या था, हारमोनियम पर रखा, मुझे इजाज़त चाहिए। डोरवाल साहब ने साज छोड़ दिया, ऊपर उठा, पैसा उठाया। ये वो कह रहा है, वो कासिम साहब का भाई, इधर आलमगीर होटल में, सैयद हुसैन, कह रहा है कि डोरवाल साहब ने उसको कहा कि डॉक्टर अली जान साहब, अगर आप अपने फ़न में यकता हैं तो मैं भी अपने फ़न में यकता हूँ, पैसा दिया मुझे वापस, तो आप जाइए। ये और एक डोरवाल साहब की शायरी, ये भी इन्होंने रेफर है, हमारे मलक साहब ने उनका शेर काउंट किया, यातिबन तिथु सखनवर नदमेरन मंज बंजिल लेगित रोज़ पानस अंदर। फिर उसने शिकवा भी लिखा हमारे यहाँ हम लोगों के लिए कि वो उन्होंने एक मुकदमा लिखा था और छात्रों में गाया था, मैं साथ था, मैं उनके साथ तबले पे संगत करता था। तो उन्होंने लिखा कि मकुन ये खूने जिगर कहू प्यालन सिप्रस ये माहरीन महाराज लालन सबहस भूस बे रुकीन और कुन बुई और कुन। ये मतलब ये डोरवाल साहब का तंज था। और रहा सवाल इस वो जो नाम उन्होंने अपनी मौसीकी और शायरी से किश्तवाड़ को एक ऐसा मतलब किश्तवाड़ के एक ऐसे मतलब उस अंधेरे में एक ऐसा चिराग जलाया जो कश्मीर में जाकर रोशन जलाया यहाँ और रोशन होगा कश्मीर में। और उसकी डोरवाल साहब की सबसे बड़ा उनमें जो वस्फ था उनके कलाम में, उनकी शायरी में, वो ये था कि एक आम फहम अनपढ़ इंसान उनके शेर को समझ लेता था। वो चाहे मरकबान हो, चाहे किसान हो, चाहे ज़मींदार हो, अनपढ़ हो, उनके शेर को समझ लेता था। मतलब वही ये थी ये वो मुशायर भाव आप सबका अभिनंदन करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, इस तरह की एक तरह से मैं कहूँगा कि मीटिंग है होनी ही चाहिए, क्योंकि जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, चाहे अपनी स्टेट के लिए काम करते हैं या पूरी कंट्री के लिए काम करते हैं और उन हर एक जगह का नाम रोशन करते हैं, तो उनके लिए एक एंडोर्समेंट का काम ये मीटिंगें करती रहती हैं। क्योंकि आज अगर हम जानबाज साहब को जान रहे हैं, जबकि मैं उनसे फेमिलियर हूँ ही नहीं, मैंने तो आप सबसे नाम सुना है, अपने पिताजी की वसात से भी उनके नाम सुनता आया हुआ हूँ कोई ना कोई बात, मगर आज मुझे मौका मिला आपके बीच आने का। और जो वो जिससे गाने की आप लिरिक्स की बात कर रहे हैं नाज़िम, आजकल वो फेमस भी हो रहा है और उसका हमें भी पता चला कि कोई जानबाज साहब का इस तरह के कलाम लिखते थे और जो कि इतना पसंद किया गया और आज प्रख्यात हो रहा है, शहर में हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है। और जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे लोग कितना अच्छा लिखते थे हर प्रकार से। और उनको जो एंडोर्समेंट थी बहुत कम थी, क्योंकि हम सब जो जितने भी लोग थे वो कभी भी उन चीज़ों को उजागर कर ही नहीं पाए, उनको हम आगे ले ही नहीं पाए, और जो चीज़ें दबी थी वो दबी हो गई। और आज
कश्मीर में या कश्मीर के बाहर वाले लोग उन चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, हम लोग उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़कर आगे निकल पड़े हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि अगर ऐसी मीटिंग भी हो रही हैं और लोगों को याद किया जा रहा है कि जो भी समाज में बाकी लोग भी काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा एंडोर्समेंट एक नए तबके को भी मिलेगी। अगर ऐसा काम कोई करता है तो समाज उसे याद करता है उसके जाने के भी बाद में, और एक इस तरह से जो बाकी लोग हैं अलग अलग फील्ड में भी काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं जानबाज साहब के बारे में क्या बोलूँ, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, मैं उतने उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। और मैं प्रार्थना करूँगा कि जो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। अपने पिताजी को भी याद कीजिए, मदन जी को, जो हमारे साथी रह चुके हैं बचपन से। न सिर्फ उनकी शेर व शायरी बल्कि उनकी मोहब्बत हर किसी के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपने पिताजी के बारे में भी कुछ बताइए ना। बचपन में तो उन्हें आपको पाला है, एक दर्स दिया है, एक रास्ता सिखाया है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो दर्स उसने आप लोगों को दिया है और जो हम लोगों ने वो कारवां आपस में मिलकर चलाया है, तो उसके बारे में आप बताएं कि साहब अपने वक्त में हमारे मोहतरम दोस्त अनजानी मदन जी जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सब हर वक्त उसको याद करते हैं। जैसे यहाँ शुरुआत हुई तो मैंने शुरुआत में ही उनको याद किया, तो मैं समझता हूँ उनके बारे में भी आप अपने पिताजी के बारे में बताइए, सो दैट दिस विल फ्लो, इट विल गो टू योर कम्युनिटी, इट विल गो टू योर पीपल, जो आपके रिलेशंस के लोग हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी ये चीज़ चली जाएगी कि उनकी कुर्बानियाँ कितनी हैं, उनको लोग किस कदर याद किए जाते हैं और आपको किस कदर वो प्यार दिया है कि हम भाई भाई की तरह रहें। प्लीज़ बचपन का कोई उनका बचपन के अगर मैं उनके बारे में कुछ बात कहना चाहूँगा तो सबसे पहले प्रमुख बात यही रहेगी कि हमारे घर में चाहे मेरे बड़े चाचा की बात कर लीजिए मुरलीलाल जी भंडारी, अगर उसके बाद मेरे ताया यानी जुगल जी भंडारी या पापा मदन जी भंडारी, तो हमारी फैमिली में सबसे पहला एक कंसेप्ट मैंने देखा है कि मैंने हिंदू मुसलमान की ये सिस्टम अपने घर में नहीं देखा है। अगर सुबह मैं सुभान काक को अपने घर में या शकील अंकल को, उस टाइम वो कांग्रेस में होते थे, तो वहाँ मैं उनको देखता था और वो कारवां पूरे दिन भर चलता रहता और शाम तक वैसा ही चलता रहता। यानी कोई भी क्रॉस सेक्शन की जितने भी सारे लोग होते थे आते थे बैठते थे और यानी रात को 11 या 12 बजे तक वहाँ यह ऐसा ही सिस्टम चलता रहता था। तो एक वो बात मुझे अपने फादर की फैमिली की तो थी, मगर मेरे अपने फादर की भी ये कंटिन्यू भी, जैसे कि भाई अंजुमन में वो मेंबर रहे, वहाँ पर भी वो कंटिन्यू जाते रहे। और जो बाकी क्रॉस सेक्शन जब भी थे, इतनी मिलिटेंसी का इतना दौर आया मगर उन्होंने वो अपनी चीज़ें कभी भी नहीं छोड़ी। चाहे कोई किसी प्रकार का प्रेशर भी आया मगर उन्होंने वो नहीं छोड़ी क्योंकि वो लोग थे जो परमात्मा पर ज़्यादा यकीन करते थे, क्योंकि मारने वाला और पैदा करने वाला वो है, वो उस पर बिलीव करते थे। और उसी विचारधारा पर आज हम जब चल रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है कि जो उनका काम किया हुआ है, जिन लोगों के साथ वो सम्मिलित थे, चलते थे, वो लोग अगर आज उनको याद करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें जब भी ऐसे कोई चीज़ हो क्रॉस सेक्शन सोसाइटी में साथ चलें, किश्तवाड़ को आगे उसकी बेहतरी उसी में है जब हम लोग साथ चलेंगे। बाकी मैं क्या कहूँ, अभी ज़िंदगी का तो कुछ भरोसा ही नहीं रहा है। यानी शाम उस दिन की बात करूँगा तो शाम को हम खुद, मैं और पापा खुद इवनिंग वॉक के लिए जा रहे थे, इवनिंग वॉक से वापस आए और रामलीला ग्राउंड के लिए पापा चले तो बोलेंगे कि नहीं जी मीटिंग करने जाएंगे, आप कोविड के 2 साल हो चुके हैं तो हम इस बार रामलीला शुरू करेंगे। और जब घर पहुँचे तो अचानक ही पापा ने ये कहा कि नहीं जी कुछ अनईजी जैसा हो रहा हूँ। और अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते यानी यहाँ क्या कहूँ मैं, जो अस्पताल का जो सिस्टम है यहाँ का वो सारा बिगड़ा हुआ है, वो डायग्नोज ही नहीं कर पाए और उसके बाद में शिफ्ट कर दिया गया। तो बाकी जो कहानी आप बेहतर सारे जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्तों के क्या जो यहाँ किश्तवाड़ के हैं फ़ोन आए। मैंने अकेली सुबह ही जब मुझे ये पता चला, जिस असम साहब को मैंने कांटेक्ट किया, बहुत सारों को किया और उन लोगों को भी किया जिनको जांबाज साहब के साथ उठना बैठना था। कुछ लोग नहीं आए, शायद उनकी मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन कहीं के पैगाम ज़रूर आए। शकील साहब कमल
जम्मू में है। उन्होंने कहा ये मेरी बदकिस्मती कि मैं यहाँ नहीं हूँ, अगर मैं यहाँ होता तो मैं ज़रूर आ जाता। बहुत सारों का उनके साथ वो प्यार रहा है। और मैं खुद भी ऐसे लोगों के पास गया, फ़ोन किया बहुत सालों से, जिनके साथ तलख कलामी हमारी थी, दूरियां थी, लेकिन मैंने सोचा कि जांबाज साहब का नाम लेकर ही क्यों ना वो शुरुआत करें, कि उनके साथ उनका उठना बैठना था, तो उसके लिए अकीदत के लिए आ जाएं। इसी बहाने हम आपस के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरेक्शन में गलतफहमियां होती हैं, जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो दूर हो जाए। बाकी जो नहीं आए, जिनको हमने बुलाया था उनका भी शुक्रिया, जो आए उनका भी शुक्रिया। मुझे एक अपने दोस्त की बात याद आती है, नाम नहीं लूँगा, वो कहता था कि रिश्ते कब नहीं थे, ये रिश्ते कब नहीं थे। जब वो हिंदू मुस्लिम बरादरी की बात करते हैं, वो उसने किया, एक बार उसने पार्लियामेंट में भी बताया कि ये रिश्ते हमारे कब नहीं थे। जब वो 1942 की बात करता है, आज़ादी की बात करता है, जबकि हर हिंदू मुस्लिम इस आज़ादी के पीछे हर किसी ने अपनी जानें गंवाई, मुकाबला किया अंग्रेज़ों के साथ, और ये आज़ादी हासिल की। लेकिन कहता ये तो हमारी बदकिस्मती है। उसका यही कहना था कि हमारे रिश्ते कब नहीं थे, वो रिश्ते आज भी हैं। ये मत कहे कि आज हमारे रिश्ते नहीं हैं, जैसे अभी सुमन जी ने बताया, रिश्ते तो आज भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे एलिमेंट्स दाएं बाएं हमारे में भी और दूसरों में भी जो बीच में आते हैं, जो खलिशें दूर मतलब वो पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से हम आपस में मिल नहीं पाते हैं। एक दूसरे का गम, एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे का वो चीज़ें बयान नहीं कर पाते हैं। मुझे अपने एक दोस्त भारत भूषण सेन जी का, मैं सुबह से उसको कंटेक्ट कर रहा था, 2-3 कॉलें की, उसका जवाब नहीं आया। बाद में कहा कि भाई बर साहब आपका फ़ोन आया था। मैंने कहा भैया इस तरह ये रखा था। ही वॉज सो हैप्पी, कहता यार भैया क्या बताऊँ, मैं लेंटर डाल रहा हूँ, अगर लेंटर न डालता तो शायद मैं यहाँ पहुँच गया होता। दे आर वेरी सेकुलर पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल, हमसे बेहतर और अच्छे लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि यहाँ की बरादरी वो कायम हो, यहाँ का अपना जो अपना कल्चर हमारा है, जिस कल्चर में हम लोग पले बड़े बहुत वो हुए हैं कि हम सब एक रहें, तो ये उनकी मोहब्बत है। अब यह कि वक़्त की सितम ज़रीफ़ी है, अल्लाह करे, ईश्वर करे कि साहब ये चीज़ें दूर हो जाएं, कि फिर हम आपस में मिलन हो, मिलाप हो, आना हो, जाना हो। बाकी ये सब तकदीर है। सोच लो, जिसको जो अल्लाह ताला ने देना है उसको वो देना है, जिसके मुकद्दर में जो लिखा है उसको वो मिलना है। तो हम आपस की तलखी क्यों रखें, हम आपस की दूरी क्यों रखें, क्यों ना आपस में मिलने की हम कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कामगार सब के उसमें शायर से बड़ बड़ शायर है सर ना, ऐसे मगर लिखित जिसके रहमान रहे सब वो तक गए होते चलने मानी लोग कहीं से वो लोग कहीं से वो मानी इस तरह के सब लोग बोले अगले के तो लोग बोल सर एवन गुडवाल जमन गजल स्पट पा बाहर हुई लाल साजुक असर हुई है शामन शुक से जामन तटा जाते सब लोग पहर हुई है रात रात से मनीषा में लाल नक्ता आँख मख्तसर मुझे है। बहुत को बहुत को बहुत को बहुत को शुक्रिया। जोरवाल साहब, रहमत साहब, मलिक साहब, हेलो यदस ना ताल्लुक जानबाज साहबन छ मे बासान कि यीत्या वनकन तुम हजरात बिहित छो मे अदबस सत लगाव छो या न छो, यह शायद तुम खतर नव कथा अदबस हर अकिस लगाव। और बहरहाल मे मलिक साहबन वो इब्तदाहस मज और मानी अल्फाज नीन बहुत अथी शेयरस पे हमेशा अथी पे सोचान, और यह इंस्पायरेशन कि यहाँ तन त्यू सखनवर जिस कौम सिख बका। ये ना ताल्लुक जानबाज साहबन सोन चुन जानबाज साहबस पे कह एहसान, बल्कि जानबाज साहबन एहसान अस पे हर कश्तवाड़ किस फर्दस पे तमिस पहचान अस दिज। आज सोशल मीडिया जमान, आज अगर कैसा त करो आनन फन मे पूरे दुनिया वातान, और यह बड़ वनकन करामात कह पन कह त फन लुकन तम वात, मगर तम वक्त ये मीडिया मजबूत, ये लुकन तम वातनुक कह तो जरिए, जानबाज साहबन बनो तम वक्त नाव और कश्तवाड़ नाव कोर रोशन। वनकन इंटरनेशनल लेवलस पे तिमन लग लुक याद कर।
بہٕ اکثر بیٚہوان تۄہہِ لُکن سۭتۍ اور ادبٕچ کتھ چھِ کران بہٕ چھُس اکثر شامس چیمبرس 9 بجے بعد چھِ یِوان مےٚ نِش کینٛہہ رٕتۍ لُکھ یِم ادبس منٛز وٕنکٮ۪ن اصل کٲم چھِ کران یا بہٕ چھُس تِمن سۭتۍ کتھ کران اکھ شخص مےٚ ووٚن مےٚ چھِ ہر وقت یہِ کتھ پیٚوان یاد دپان جان باز صٲب اوس ونان مےٚ چھِ دۄن انسانن پٮ۪ٹھ سخت زہر کھسان بہٕ چھُس سخت ناپسنٛد کران اکھ سُہ ییٚمِس کانٛہہ شعر کانٛہہ کلام پسنٛد یی سُہ دی نہٕ داد بالکل دوٚیِم سُہ شخص ییٚمِس نہٕ سمجھے سُہ کرِ واہ 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 بالکل لہذا اَسہِ پَزِ کم از کم اگر اَسہِ وٕنکٮ۪ن تہِ سمجھ آو کہِ جان باز صٲبٕنۍ کیٛاہ کنٹربیوٗشن آسہِ سوسایٹی خٲطرٕ کشتواڑس خٲطرٕ أسۍ کرو نہٕ واہ واہ سُہ چھُ ناخۄش تیٚلہِ اَدٕ کِتھ پٲٹھۍ تَگہِ نہٕ بہٕ چھُس مُبارک دِوان خۄرشیٖد صٲبس کہِ یِمو کٔر اکھ پہل کشتواڑُک ناو روشن کرنہٕ وٲلۍ چھِ جان باز صٲب نِشاط صٲب کامگار صٲب یہِ چھُ یتھٕے جنریشنس تام اگر أسۍ یِتھ قٕسمٕکۍ گیٹ ٹُگیدر کرو نہٕ یِتھ پٲٹھۍ تِہنٛز کنٹربیوٗشن لُکن تام واتناوو نہٕ مےٚ چھُ باسان یُس بیاکھ جنریشن آسہِ تِمن خٲطرٕ آسن تِم بالکل اجنبی تِمن آسہِ نہٕ پتہٕے جان باز صٲب کُس اوس تِمن آسہِ نہٕ پتہٕے نِشاط صٲب کُس اوس گۄڈٕ اوس نِشاط صٲبٕنۍ کانٛہہ نظم یِوان اردوٗوس منٛز تِمن آسہِ نہٕ پتہٕے رسا جاویدانی یہِ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ اکھ ذمہٕ وٲری تِمو کٔر پنُن دے ہیو پلیڈ دیر اِننٛگ یہِ تۄہہِ ووٚنوُ تِمو کٔر پنٕنۍ تِمو کرنو سوسایٹی خٲطرٕ کشتواڑس خٲطرٕ کم از کم یوٗتاہن ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کہِ تِہُنٛز کتھ واتناوو برونٛٹھ تاکہِ یِنہٕ وٲلۍ جنریشن تھاوَن یتھ یاد سون کلچر کوٗتاہ رِچ اوس اَسہِ چھِ پنٕنۍ زبانٕے گٔمٕژ مٔشِد وٕنکٮ۪ن وٕچھِو تُہۍ گرن منٛز اَسہِ چھِ بچن اردوٗ ہندی منٛز کتھ کران اور وۄنۍ چھِ کینٛہہ سوسایٹی تِم کینٛہہ گرٕ تِم چھِ ونان أسۍ چھِ زیادَے پہن ماڈٲرن تِم چھِ انگریزی منٛز بچن سۭتۍ کتھ کران یُس اَسہِ اصلی کلچر اوس سُہ مٔشرو اَسہِ پزِ پہاڑین نِش ہیٚچھُن اَسہِ پزِ گُجر بکروالن نِش ہیٚچھُن اَسہِ پزِ ڈوگرن نِش ہیٚچھُن اَسہِ پزِ ہر تٔمِس انسانس ہیٚچھُن یِمو پنُن کلچر ترٛوو نہٕ سٲنۍ پہچان چھِ کلچر یہِ چھنہٕ سٲنۍ پنٕنۍ چویس یہِ اللہ تعالیٰ کی مرضی تٔمۍ اگر اَسہِ کشتواڑن پٲدٕ کٔر تٔمۍ دیُت اَسہِ یہِ کلچر یہِ سوسایٹی یہِ زبان یہِ تہذیٖب أسۍ مشراو یتھ تہذیٖبس أسۍ بناو یوٗرپ وٲلۍ تہٕ تَمے تیٚلہِ اَسہِ یوٗرپس منٛزٕے گژھن پٲدٕ آسٕنۍ کٔرمٕژ یہِ چھُ اَسہِ تٔمۍ دیُتمُت اکھ ذمہٕ وٲری پنُن کلچر کٔرِو پرٛزٲرو پنٕنۍ یِم تُہنٛدۍ زِٹھۍ بُزرگ روٗدمٕتۍ چھِ یِہٕنٛز کنٹربیوٗشن سوسایٹی منٛز چھِ تِمن کٔرِو ایپرِشیٹ تِہٕنٛز کتھ واتنٲیو بیٚیہِ جنریشنس تام اور بہٕ چھُس دپان جان باز صٲب ٲسِن نِشاط صٲب ٲسِن کامگار صٲب ٲسِن أسۍ ہٮ۪کو تِمن یِہوے خراج عقیٖدت دِتھ یُس تِہُنٛد کلام اوس تِہٕنٛز کنٹربیوٗشن سوسایٹی خٲطرٕ سُہ واتناوو أسۍ بیٚیِس جنریشنس تام یہِ میسیج گژھِ اَکہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جنریشنس تام پاس تِہُنٛد ناو روزِ زِنٛدٕ تِہٕنٛز کنٹربیوٗشن روزِ اور سون فخر سون سر روزِ فخر سۭتۍ بُلنٛد تاکہِ أسۍ تہِ وَنو ہم اُس زٔمیٖن سے اُس دھرتی سے تتھ جایہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ بِلانٛگ کران یۄس جان باز صٲبٕنۍ زٔمیٖن حظ وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ وٕچھان نازنیٖن یار میون کوٗت فیمس گوٚو ہر کانٛہہ وَنان یہِ چھُ جان باز صٲب اہن چھُے جان باز تَمے کوٚر پنُن رول پلے تُہۍ کیٛاہ چھُو کران بھی تو اس کی کنٹربیوشن کو آگے لوگوں تک لے کر کے جاؤ اور یہ چھُنہٕ وۄنۍ أکِس ڈوٗلوال فیملی ہٕنٛز ذمہٕ وٲری اگر مشتاق صٲب چھُ کران یہِ چھُ أمِس پٮ۪ٹھ تہِ فرض اگر یِم اخبارس منٛز لگن فرض چھُ کیٛازِ کشتواڑٕچ پہچان اوس جان باز صٲب یہِ تہِ چھُ کشتواڑ اگر بہٕ کرٕ کینٛہہ بہٕ کیٛازِ وَنہٕ کہِ مےٚ گژھِ کانٛہہ امیُک دیُن کانٛہہ لیکن وہ تِمو اگر تِم آسن صرف اَکہِ فیملی ہُنٛد نُمٲیندٕ تیٚلہِ ٲس کتھ تِمو کٔر کشتواڑُک ناو روشن اور بہٕ چھُس دپان کہِ آز کہِ دۄہ یُس تۄہہِ یہِ شروعات کرو یہِ گژھِ اکھ ریگولر فیٖچر گژھُن جان باز صٲبٕنۍ یاد منٛز نِشاط صٲبٕنۍ یاد منٛز یہِ گژھِ گژھُن اکھ ریگولر فیٖچر اور یتھ خٲطرٕ گژھِ اکھ سوسایٹی بنٕنۍ بہت سارے یہ چندر جی ہیں مطلب مےٚ دِژ اکھ مِثال بِلا لحاظ مذہب مِلت ابو فرام پُلٹِکل ایفیلیشن اکھ فارما گژھِ ہے بنٕنۍ جو کم از کم یِم چیٖزن کرِ ہاے لایٹ یِہٕنٛز اچیٖومنٹ کرِ ہاے لایٹ سو دیٹ کہِ یِنہٕ وٲلۍ جنریشن تہِ تھایہِ یاد اور اَسہِ گژھِ ہے یِہٕنٛز کنٹربیوشن روزن زِنٛدٕ سون کلچر روزِ زِنٛدٕ اور یہِ اوس سارنٕے کھۄتہٕ خراج عقیٖدت بہت بہت شکریہ صبح گئی میں واریاہ زیادٕ خوشی اس گیڑن میں خورشید لال کی کال آئے اور یہ کال میرے لیے بہت ایک سڈن اکھ کال اکھ اتفاق تہِ ون بات کہتے مگر حیرانگی گئی کہ خورشید لالن کوٚرُس بہٕ یاد آز حالانکہ فرض اوس میون بنان ہمیشہ خورشید لال ٲسۍ زیٹھ اَسہِ یِمن نِشن گژھُن لیکن ان کا کال آیا کہ آج جان باز صاحب کی تقریب تھٲومٕژ چھِ مےٚ تہٕ بہٕ چھُس تُہۍ سارنٕے اِنوایٹ کران اَمہِ گۄڈٕ چھُس بہٕ اَسہِ سارنٕے ہُنٛد شُکر گُزار امیٖن انکل چھِ ییٚتہِ اسلم انکل ملک چھِ ییٚتہِ رحمت انکل نجات صٲب چھِ ییٚتہِ مشتاق انکل چھِ ناصر بیا چھُ صفدر بیا ٲسۍ ییٚتہِ مےٚ نِش چھِنہٕ ایکچُؤلی وٲڈٕے نہٕ الفاظٕے نہٕ کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ کینٛہہ بیان کٔرِتھ
बट स्टिल बह कर ट्राई जानबाज सबस गरस में सारी वन बाप जान तो बाप जान के अशारन पर मैं डेडियन जब मेरे डैड ने मुझे पूना में पढ़ने के लिए भेजा उस टाइम पे डैड ने मुझे 2 शेर बताए थे कि राशिद जी बाप जानन इत पे लिखमुत कुछ फनस मज गस मुकम्मल नाव पन्नु जिंद थाव जान बाजन पेठी चो यम कौम कोई नजरान बन आज सह किश्तवाड़ पे नबर पढ़ने द्रामुत ऐ दिस मे पूना नौ शहर मे दुत पूनुक सारे बेस्ट कॉलेज इंडिया बेस्ट कॉलेज सिम्बाइस पढ़न बहुत ना चाहान कि पगह निशन का नॉलेज बाकी चीज़ कर ज़ाय बहुत चाहान और यूथा यी सोचन किश्तवाड़स पे खतर आप जितना हो सके किश्तवाड़ में उसको सर्व करना किश्तवाड़ की खिदमत करना ये कत रोज में हमेशा जहनस मज बेस मे वन डैडी हमेशा कि जानबाज सुबह शायरी हमेशा रोज अम दित कौमस खताब तथ मज रोज जानबाज सुबह वन इक्वालिटी हज कत कर मसावत कत कर जो अभी सब लोगों ने बोला कि नाज़रीन वनकन गेवन वनकन फेमस गुमुत अत मन कह लाइन्स ति जहाँ पे वो बोलते हैं कि छूत छात माछरावा इत्तेहादुक यह मुद्दा असल का तरीन में फिक्र तथ वन मसावत उन्होंने इसी बात का जिक्र भी किया कि इस पर वनकन वर्ल्डस में अख चीज़ की पूरे वर्ल्ड वनकन वन कि अनटचेबिलिटी गई खत्म गई छूत छात गई खत्म गई सह दरस आज पे 5-6 वरी गोड़ जानबाज सबन दितमुत और सेकेंड उस खताब कोर तम कौमस जानबाज सुबन तम दित जवानस कुन कोर तमो वारा शेर नजर अख शेर तमो ये वोनमुत जवानन खतर कि दियो जवानन आज सबक आसमानन हुन गो जमान रुस कचन तो पहले नामन हुन इस गणे में यम शायरुक जिक्र वुच अल्लामा इकबाल ने शेर वुच में जो मैं रिजेंबल करता हूँ इंटरप्रेट करता हूँ अल्लामा इकबाल शेर की मोहब्बत है मुझे उन नौजवानों से सितारों पे जो डालते हैं कमन तमिच तशरी समझन भी शायद से जानबाज सबन सह तशरी करमज यथ शेरस और जो भी उनका दरस था जो भी उनकी शायरी थी सुलग में यह है कि तमो कोर्मत या कौमस वक़फ़ पन ज़िंदगी पन शायरी सोरी हाँ आज उस महफिल तकरीब गए सारी वह ये सही कहा कि ये किश्तवाड़ में ये लेजेंड रुदम चाहे चंद्र जी हैं चाहे निशाद साहब हैं कामगार साहब हैं मनमोहन जी हैं मनमोहन जी शायद नाम ना आए इस टाइम पे हमें याद दैट डजंट मीन कि हम उनको याद नहीं करें या हमें वो याद नहीं है इस टाइम पे याद नहीं आ रहे हैं हाँ ये ऐसे आदमी फोरम को हम लोगों को जन्म देना चाहिए और हमें गाइडेंस चाहिए हमारे बुज़ुर्गों की तो अगर तो गाइडेंस होने जिगर शार आपने कश्मीरी में शार उनके बोले लेकिन वो उर्दू के भी बहुत लिखते थे कि मैं एक दफ़ा जब मनमोहन जी गुप्ता के पास बैठा था तो ऐसे बातें थे ना मैं उनको शेर सुनाता गया जब ये उर्दू शार मैंने उनको सुनाए वो कहने लगे यार डुलवाल साहब ये भी लिखते थे उनको पता ही नहीं वो क्या लिखता था कहता यार अब मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि डुलवाल आपने में ये शायरी की लेकिन मुझे आप पर बड़ा ये फ़ख्र होता है कि आपको इतने अशार याद है उनके तो उनके उर्दू अशार में बोलता हूँ कि मैंने सबको पिलाया है खूने जिगर इसका उल्टा ही मिलता है मुझको समर मेरा फ़र्ज जो था मैंने पूरा किया अब कोई भूल जाए तो मैं क्या करूँ हर किसी को मयसर नहीं साज है इसमें कुदरत का ही कुछ न कुछ राज है कोई अयाज है कोई जांबाज है कोई बेसुर भी गाए तो मैं क्या करूं तो ब्याक क्या मतलब ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ये 1974 मज आव तो प्रोग्राम गो हालस मज 4 मिनिस्टर तम दो सी तमिस सोहरवर्दी सोब सनम नरबू डी ठाकर और वो बसरभाई साहब शायद थे 4 ही मिनिस्टर थे वो पहले कैबिनेट मिनिस्टर आए तो उन्होंने यहाँ जब प्रोग्राम किया तो डोलवाल साहब को बुलाया गया अब डोलवाल साहब ने कहा कि खुद ही मतलब कितनी उनमें थी उन्होंने कहा यार मैंने एक शेर कश्मीर शेख मोहम्मद को गाना सुनाना है मैंने इसको यमिश ये क्या समझी यह पेशवर यह बेच आर्टिस्ट यह आर्टिस्ट मतलब मे तमिस हावन बह आर्टिस्ट कि शेर कश्मीर शेख इंटरनेशनल लीडर अम वन अमिस गज़ल अभी अम वन गज़ल अब्दुल अहद फरहदई कि यह मोन जिगर ये सा कत
نہ تو سیود کس روٗد اَتہِ نال مَتیو یہِ چھِ ہِسٹرٛی پوٗرٕ یہِ اس کے شعر پوٗرٕ ہمارے کشمیٖر کی یہِ چھُ میون جِگر ییٚمہِ سۭتۍ سۄ کَتھ نَتہٕ سیوٚد کَس روٗد ییٚتہِ نال مَتیو تَمہِ پرتو پرٛو لٔج اختابَس تَمہِ وُزمَل ییٚلہِ نی ژھال مَتیو مےٚ چھُ راتھٕے ووٚہمُت کَنہِ تامَتھ شہرن یہِ ہوونَس منِسٹرن ژورَن کُن کہِ مےٚ چھُ راتھٕے ووٚہمُت یہِ نا درٛابڑ دِتۍ مےٚ وۄڑ کٔرمٕژ ووٚہمُت گوٚو سُے مےٚ چھُ راتھٕے ووٚہمُت کَنہِ تامَتھ یِنہٕ پگہٕچ مٔشتٕے منٛز راوَکھ اَڑٕ کھوٗرۍ شُرٮ۪ن یِن کھور ڈَلَن یِن قدمَن راوی چال مَتیو نہ چھُ خابہٕ خیالَن منٛز روٗٹِتھ نہ چھُ ہُٹہٕ مُٹہٕ کانٛسا تھامہِ گوٚمُت ہاے اَتھ چھُ کٲنٛکِلۍ مَستَس کھُر آمُت تٔتھۍ شانہٕ کَران چاہی مال مَتیو تہٕ لاسٹَس ژُنُس پَنُن شعر ژُنُس منٛز کِنۍ کہِ شہرٕے چھِ وٮ۪پان آز شہرَن منٛز لُکھ پیٚیہِ بدلٕے پھیرَن منٛز ییٚتہِ شیرِ بَبر گگرایہِ کَران بٕتھِ ٹھہران زیادٕ تَتہِ چھال مَتیو شُکریہ جِناب اتنا ہی السلام علیکم